Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivatives. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.1. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2. पहले डेफिनेशन डेरिवेबिलिटी डेरिवेबिलिटी इसके तीन केस हैं. Case 1, a function fx is said to be derivable at x is equal to a if number 1 left hand derivative exists, left hand derivable exists, number 2 right hand derivable exists. A function is said to be derivable at x is equal to a if left hand derivable exists, right hand derivable exists. दूसरा केस है left hand derivative is equal to right hand derivative. Left hand derivative is equal to right hand derivative. तीसरा केस है if there is any given value then it should tally with case 2. If there is any given value then it should tally with case 2. Number 1, a function fx is said to be derivative या derivable at x is equal to a if and left hand derivative exists, right hand derivative exists, left hand derivative is equal to right hand derivative. Bismillahirrahmanirrahim. बहुत important note है. If all the conditions are satisfied, if all the conditions are satisfied, then we say that function is derivable at x is equal to a. If all the conditions are satisfied, then we say function is derivable at x is equal to a. And if any one is unsatisfied, then we say that function is not derivable at x is equal to a. We say function is not derivable at x is equal to a. We say function is not derivable at x is equal to a. If all conditions are satisfied, 1, 2, 3, then we say function is derivable. If anyone miss, then we say function is not differentiable. जी ये थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट. If f is differentiable at x is equal at a point a belongs to domain of f, then आपने साबित करना f is continuous at x is equal to a. कहता है जो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है ना वो कंटिन्यूस भी होता है. भाई डिफरेंशियबल का मतलब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. If f is differentiable at a point a belongs to domain of f, then f is continuous at x is equal to a. भाई बहुत मशहूर थ्योरम है. अगर f डिफरेंशियबल है, जो भी डिफरेंशियबल फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, मे और मे नॉट. लेकिन ये कंफर्म है अगर f डिफरेंशियबल है देन f is continuous होगा. If f is differentiable at a point a belongs to domain of f, then f is continuous at a. To prove that f is continuous at a point a, we need to show that limit x approaches to a, fx is equal to f of a. Bhai, to prove that f is continuous at a, we need to show that limit x approaches to a, fx is equal to f of a. देखिए फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, डिफाइंड हो जाए, लिमिट अप्लाई करो, एग्जिस्ट करे और दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए. आप तरह देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब एक्स का ताल्लुक, लिमिट का ताल्लुक सिर्फ एक्स के साथ है. भाई जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए पुट करेंगे, यानी कि एक्स इज वेरिएबल. फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ ए. और गिवन क्या है हमारे पास, एफ इज डिफरेंशियबल. एफ इज, इफ एफ इज डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन, फंक्शन डिफरेंशियबल है. अब आप इसको इधर ले दें. भाई देखो जब लिमिट अप्लाई करोगे सिर्फ इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर नहीं लग सकती. हमने साबित करना इक्वल टू जीरो. भाई हमने साबित करना अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा. भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. टेक लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मनफी एफ ऑफ एक्स मनफी ए से डिवाइड एक्स मनफी ए से मल्टीप्लाई. भाई अल्लाह ताला लिमिट शो कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसके ऊपर डाला, इसके ऊपर डाला. भाईजान अब फंक्शन डिफरेंशियबल है तो भैया ये डेरिवेटिव का फार्मूला है जी. तो भैया ये एफ डैश होगा, यहाँ पे ए मनफी ए क्या होगा, जीरो. भाई ए मनफी ए क्या होगा, जीरो. भाईजान ए मनफी ए क्या, भाई ए मनफी का जीरो, जीरो का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, देन दस एफ इज कॉन्टिन्यूस. भाई मैं लेफ्ट हैंड ली, राइट प्रूफ कर दी. दस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट ए
बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज फॉल्स। भाई कन्वर्स जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो जाए, वो फॉल्स हो सकता है। तो आप तो देखेंगे वो कहता है जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। भाईजान इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट ए, देन एफ इज कंटिन्यूस। एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। भाई जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस एट ए, वी नीड टू शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ ए। भाई आपने साबित करना है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपने क्या साबित करना है, ये बराबर है या इसको इधर ले जाए तो इक्वल टू जीरो। हमने लेफ्ट हैंड ली और राइट हैंड प्रूव कर दी। और देखें जब उसने कहा ना एफ डिफरेंशिएबल है, तो इसकी जगह पे आई पुट, इसकी जगह पुट एफ डैश ए, रेफरेंस एफ डैश ए किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स मनफी एफ ए ओवर एक्स मनफी ए। और यहाँ पे ए मनफी ए क्या होगा, जीरो। तो याद रखें जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन था वो हमेशा कहता है कंटिन्यूस। ये थ्योरी जो है ना आप उधर पढ़ते हैं इन्फिनिट सीरीज के अंदर। इन्फिनिट सीरीज मेथड का 8वां चैप्टर, उसके अंदर ये थ्योरम काफ़ी दफ़ा यूज होता है। बहरहाल याद रखें अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो देन एफ का, और ये थ्योरम है, थ्योरम का मतलब कानून है जी। एग्जांपल एट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स मोड, एफ एक्स बराबर एक्स मोड, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आप चैप्टर 1 में कर चुके हैं। 1.3 में वी चेक वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स जी। वी चेक वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, वेर एच पुट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला होगा एफ लेफ्ट एफ डाई जीरो बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ जीरो मनफी एफ ऑफ जीरो ओवर माइनस एच। जीरो पे चेक कर रहे हो, जीरो मनफी एच और नीचे माइनस एच आएगा। राइट के लिए जीरो प्लस एच करेंगे ओवर एच आएगा, और यहाँ पे जीरो पे चेक करेंगे एफ जीरो आएगा। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एच पुट करो, माइनस एच का मोड जीरो जीरो पुट करोगे ओवर माइनस एच। भाई ऊपर प्लस एच आएगा नीचे माइनस एच आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस होने के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, वेर एच अप्रोच टू जीरो। राइट एफ डैश जीरो बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। तो भाई क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू एच मोट मनफी एफ जीरो ओवर एच। तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या माइनस वन, इसका आंसर क्या वन। अच्छा भाई इसको कई तरीकों से किया जा सकता है। अब मोड उतारे ना तो प्लस माइनस वन आता है, प्लस माइनस एक्स आएगा, प्लस एक्स होगा फॉर राइट हैंड करिए और नेगेटिव एक्स होगा फॉर लेफ्ट, उस तरीके से भी किया जा सकता है। लिहाजा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जी। लेट एफ एक्स बराबर एक्स साइन वन और एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो if x is equal to 0. Discuss the continuity and differentiability at x is equal to 0. Example 2, Bismillahirrahmanirrahim. fx के दो आंसर हैं, x into sin 1 over x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0. Discuss the continuity and differentiability at x is equal to 0. भाई ये हमने कंटिन्यूटी वाला तो हमने 1.3 में पढ़ा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0, ये वहाँ से देख लीजिएगा। We check the function is differentiable at x is equal to 0. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, put x is equal to 0 मनफी h, where h approaches to 0. भाई लेफ्ट f dash 0, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f dash 0 का मतलब 0 को ऊपर चेक कर रहे हैं। लिमिट h approaches to 0 f of 0 मनफी f of 0 ओवर माइनस h। भाई जनता देखें जब आप f 0 रखोगे ना तो भाई आंसर 0 आएगा जी, तो जब माइनस h रखोगे तो ये आएगा जी, ओवर क्या होगा माइनस h। भाई आप तो देखें कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सम नंबर इन माइनस वन एंड वन जी। भाईजान इसका आंसर आएगा सम नंबर इन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भैया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई इन क्वेश्चंस को हल करने के और भी मेथड्स हैं, आपको सिर्फ इसका सिस्टम क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में पुट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करें 0 मनफी h, तो f ऑफ लेफ्ट f डैश 0 बराबर होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 मनफी h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h। भाई f 0 उसने दिया होगा 0, तो भाई जब माइनस h रखोगे तो ये आएगा,
माइनस एच कैंसिल, साइन का आगे नेगेटिव बड़ा बाहर आ जाता है, तो इसका आएगा सम नंबर इन माइनस एंड वन। does not, limit is not unique, so limit does not exist, the other function is not differentiable at x is equal to 0. जी एग्जाम्पल कहता है दी हाइट s in feet of a rocket t second after its launching is given by s is equal to minus 2t cube plus 114t square plus 480t plus 1 where t is greater equal to 0, इसको 1 कह रहे हैं। Find the velocity of the rocket at any time t, at any instant t, velocity of the rocket निकालेंगे, velocity when t is equal to 0 and the velocity after 20 seconds, और तीसरे नंबर पे the maximum height reached by the rocket, maximum height निकालेंगे। पहली फरमाइश है velocity at an instant, the velocity of the rocket at an instant t में s को with respect to t डिफरेंशिएट करें, s को with respect to t डिफरेंशिएट velocity कराएंगे। भाई उसने मांगा ना पहले में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ही, यानी कि आपके पास एस इज अवेलेबल, एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल वेलोसिटी आ जाए, भाई एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे, वो आएगी माइनस 6t स्क्वायर प्लस 228t एंड प्लस 480। भाई आपने जी भाई एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे, वो आया माइनस 6t स्क्वायर प्लस 228t एंड प्लस 480। उसके बाद दूसरी फॉर्मेशन वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड। नो t की जगह पे 0 पुट कर दें, जहाँ जहाँ v है वहाँ t पुट कर 0 पुट कर दें, तो वी गेट 480 फीट पर सेकंड इज द वेलोसिटी विद विच द रॉकेट इज लॉन्च। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 480 फीट पर सेकंड होगी। वजन नो t इज इक्वल 20, जहाँ जहाँ t है वहाँ 20 पुट करें, भाई 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 4620 फीट पर सेकंड, और जाहिर है कि 4 फीट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 42640 फीट, यानी कि 2640 की वेलोसिटी फीट पर सेकंड होगी। अब आपने तीसरा है मैक्सिमम हाइट हाइट इज अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट, भाई जब मैक्सिमम हाइट होगी तो उस वक्त वेलोसिटी होगी 0, भाई मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी 0, वेलोसिटी को 0 पुट किया था, वहाँ से टी की दो वैल्यूज निकली 40 और -2, -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड, ठीक है जी। अब इस टाइम को आप वो एस में पुट कर दें, द मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड आफ्टर 40 सेकेंड, वो क्या होगा, आप पुट टी इज इक्वल टू 40 इन एस, एस हमारे पास था, जहाँ जहाँ टी है यू पुट 40, भाई कैलकुलेट करें तो आपकी जो स्पीड आएगी 173,601 फीट इज उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, भाई 173,601 उसकी इतने फीट उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, भाई एस इज इक्वल टू 173,601 फीट इज द मैक्सिमम हाइट, इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, भाई उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। एग्जाम्पल 4, द कॉस्ट CX in rupees of producing X unit of some item is given by CX का फार्मूला 2000 प्लस 2x माइनस 0.0001 इंटू एक्स के जी, उसने द कॉस्ट CX ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट ऑफ सम आइटम इज गिवन बाय, ये कॉस्ट का फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स पे 1 2 रखेंगे तो मुस्लिम आइटमों की कीमत निकलेगी, 1 रखोगे तो 1 आइटमों की कीमत निकलेगी, 2 रखोगे 2 आइटमों की कीमत निकलेगी, 10 रखोगे 10 आइटमों की कीमत निकलेगी। The cost CX of producing X unit of some item is given by 2000 plus 2x minus 0.0001 आगे x के। Find the actual cost of producing 1000 first unit, कहते हैं 1001वां आइटम की आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाल ली, भाई 1001वां जो आइटम है ना, 1001वां आइटम उसकी आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ CX of producing X unit of item is given by, ये कॉस्ट का फार्मूला दिया हुआ, एक्स पे 10 रखोगे 10 आइटमों की कीमत निकलेगी, एक्स पे 20 रखोगे 20 आइटमों की कीमत निकलेगी, एक्स 100 100 आइटमों की कीमत निकलेगी। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 फर्स्ट यूनिट, भाई 1001 आइटमों की कीमत निकाल दी। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1000। अब जो देखिए पहला पार्ट, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 फर्स्ट यूनिट ऑफ आइटम इज the difference between the total cost of producing 1001 unit and the total cost of producing the 1000 unit. Therefore,
द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ 1000 फर्स्ट यूनिट ऑफ आइटम इज गिवन बाय, भाई आप 1000 एक आइटमों की कीमत निकालें और 1000 की आइटमों की कीमत निकालें। भाई 1000 एक आइटमों की कीमत में से 1000 आइटमों की कीमत निकाल देंगे तो आपके पास निकलेगा कॉस्ट ऑफ 1000 फर्स्ट यूनिट ऑफ आइटम। भाई 1000 एक में आइटम की कीमत किस तरह निकलेगी, कॉस्ट ऑफ 1001 माइनस कॉस्ट ऑफ 1000 आइटम्स। भाई देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 फर्स्ट यूनिट, भाई 1000 में जो यूनिट है ना 1000 एक में जो यूनिट है उसकी जो कॉस्ट निकालने का फार्मूला कॉस्ट ऑफ 1001 माइनस कॉस्ट ऑफ 1000। भाई कॉस्ट ऑफ 1001 माइनस कॉस्ट ऑफ 1000। भाई इसका मतलब है जहाँ जहाँ कॉस्ट है उसमें सी में आपने 1001 रख ली और जहाँ पे कॉस्ट है वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पे क्या रखना जी 1000। तो प्लीज पुट हियर द वैल्यूज एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वजन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी सी, भाई ये हमारे पास क्या आएगा 1.7999 रुपीज़। भाई 1000 एक में जो आइटम की कीमत होगी वो 1.7999 रुपीज़ होगी। अब मार्जिनल कॉस्ट के लिए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। भाई फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे वी गेट दिस। अब मार्जिनल कॉस्ट है जब एक्स क्या होगा 100 तो आपने जहाँ जहाँ एक्स है 100 पुट कर दें तो जो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा ये 1.8 निकलेगा। ये जिस इकोनॉमिक्स का शोबा है मार्जिनल कॉस्ट जब भी निकालनी आप उस फंक्शन को या उस कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करें, जो जवाब आया उसमें आपने मार्जिनल कॉस्ट से एट 1000 तो जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 1000। वर्जन 1 सेकेंड रिपीट कॉस्ट का फार्मूला उसने दिया हुआ है सी एक्स बराबर 2000 प्लस 2x माइनस 0.0001 एक्स के। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 फर्स्ट यूनिट, आपने एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है 1000 एक में आइटम की और फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, और क्या निकालनी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी 1x बराबर 1000। भाई आपने कॉस्ट ऑफ 1000 1 यूनिट निकालनी हो तो क्या करेंगे आप कॉस्ट ऑफ 1001 निकालें माइनस कॉस्ट ऑफ 1000 निकालें। इसी तरह जब मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो फंक्शन को कॉस्ट को डिफरेंशिएट करें और उसमें एक्स्ट्रा पे क्या पुट कर दें 1000। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शो दैट दिस फंक्शन f(x) बराबर x मोड प्लस x - 1 का मोड इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। भाई f(x) हमारे पास है x मोड प्लस x - 1 का मोड, आपने शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x but is not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1. Let a be arbitrary number, arbitrary real number a ले लेंगे। We check the continuity of fx at x is equal to a, उसने कहा for every value of x, अब सबके लिए तो नामुमकिन है तो हम एक जनरल बात कर लेते हैं x is equal to a। लेफ्ट हैंड लिमिट put x is equal to a minus h where h approaches to 0, वजन जहाँ जहाँ x है you put a minus h। after simplification and after primary limit we get a mod plus a - 1 का mod। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे पुट x इक्वल a प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h पुट करो एंड अप्लाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो वी गेट a mod प्लस a - 1 का mod। अब जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f(x) हमारे पास है x mod प्लस x - 1 का mod, f a बराबर होगा a mod प्लस a - 1 का mod बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। वजन गिवन फंक्शन का होगा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू a। ये तो कॉमन सी बात है, उसने कहा था ना शो करो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, भाई हर वैल्यू x के लिए। अब आपने भाई नो फॉर डिफरेंशियबिलिटी टेक x इज इक्वल टू 0, भाई पहले 0 पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट f का 0 बराबर होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 मनफी h मनफी f ऑफ 0 ओवर माइनस h। भाई h मोड प्लस h प्लस 1 का मोड मनफी 1 ओवर माइनस h, भाई खोलोगे तो ऊपर आएगा 2h नीचे h तो योर आंसर इज -2, भाई योर आंसर इज -2। भाई जना आपने इसको सिंप्लीफाई किया योर आंसर इज -2। अब राइट हैंड के लिए क्या होगा जी, भाई जन राइट हैंड के लिए क्या आएगा जी प्लीज पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, राइट f का 0 बराबर होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। तो भाई जन यहाँ पे x होगा वहाँ पे h आएगा।
अब भाईजान आप जरा देखें ऊपर आएगा 2h माइनस 2 ओवर एच, जब नीचे भैया जीरो रखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। भाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। टेक एक्स इज इक्वल टू 1, टेक एक्स इज इक्वल टू 1। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच वेयर एच अप्रोचेस टू जीरो। भाई क्या होगा जी पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच वेयर एच अप्रोचेस टू जीरो। भाई लेफ्ट एफ डैश 1 क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस एच। तो भाई जन इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे हमारा आंसर जीरो निकला है। भाई आफ्टर कैंसिलेशन जीरो निकला है। राइट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल 1 प्लस एच वेयर एच अप्रोचेस टू जीरो। तो क्या होगा, राइट एफ डैश 1 लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच। वजन जहाँ जहाँ एक्स ऑफ 1 प्लस एच पुट किया, यहाँ पे एक्स ऑफ 1 पुट किया ओवर एच। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 2। भाई राइट का डेरिवेटिव 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। भाई सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ जी एफ एक्स हमारे पास है एक्स जब जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1 हो, बराबर होगा 2x माइनस 1 इफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। भाई आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। भाई गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। पहले आपने एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है। वी चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो भाई क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड। तो भाई देखें जब दो फंक्शन होंगे ना तो एक लेफ्ट के लिए यूज़ करेंगे एक राइट के लिए। भाई अगर एक फंक्शन होगा ना तो फिर उसके ऊपर तो हम 1 माइनस एच 1 प्लस एच करेंगे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के दो हिस्से हैं। तो भैया ऊपर वाला एक्स लेस देन 1 वो लेफ्ट हैंड के लिए होगा, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये राइट हैंड के लिए होगा। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स हमारे पास है एक्स के लिए, लेफ्ट एफ डैश 1 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 ओवर एच। भाई रकम में पुट करेंगे 1 प्लस एच रखोगे इसमें और 1 रखोगे इसमें ओवर एच। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 जी। वैसे भी अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स का 1 नहीं होगा जी। वैसे भी वजन इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या 1 नहीं होगा जी। भाई वैसे भी इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 नहीं होता ना, बराबर इसको डिफरेंशिएट 2 होता जी। लेकिन आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो, राइट एफ डैश 1 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 ओवर एच जी। आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच रखा जी, फिर माइनस करके 1 रखा जी, ओवर बाई जन एच, ऊपर सिंप्लीफाई किया, ऊपर 2h आ गया, नीचे h आ गया तो 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड का आंसर 1 था, राइट हैंड का 2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 जी। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 जी। एक दफा फिर देखें एफ एक्स बराबर एक्स के जब x लेस देन 1 होगा जी, एफ एक्स बराबर होगा 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 होगा जी। भाई ये वाला फंक्शन यूज होगा फॉर लेफ्ट हैंड और ये वाला फंक्शन होगा यूज फॉर राइट हैंड। भाई ये वाला फंक्शन यूज होगा फॉर लेफ्ट हैंड और ये वाला फंक्शन होगा फॉर राइट हैंड। भाई जब लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन यूज करेंगे तो हम एफ एक्स बराबर एक्स रखेंगे, जब राइट हैंड के लिए यूज करेंगे फंक्शन तो हम ये यूज करेंगे 2x माइनस 1 हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि फंक्शन के दो पार्ट है ना, एक फंक्शन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ऊपर वाला यूज करेंगे, जब राइट हैंड की बात करेंगे तो भैया 2x माइनस 1 नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि फंक्शन के दो पार्ट हैं और अगर फंक्शन एक होता तो वहाँ पे फिर हम लेफ्ट राइट का वो 1 माइनस एच और 1 प्लस एच यूज करते हैं।